Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Cloud Computing. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to learn the pros and cons of cloud computing, know about different types of clouds, understand different types of services a cloud can offer. Warm up. Observe the following picture and write 5 things that come to your mind. एक पिक्चर आपको दी गई है और कोई भी ऐसी 5 चीजें लिखनी है जो आपके माइंड में आ रही हैं. ओके? हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग. तो चैप्टर में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे. Cloud computing is a service that requires a subscriptions and includes a number of services. These services are used by individuals and organizations. Because all the processes take place in the internet world, it is known as cloud computing. Okay. अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग आपका एक सर्विस है जिसकी में सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें बहुत सारी सर्विसेज आपकी आती हैं. तो ये कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज़ कर सकता है क्योंकि जितने भी जो प्रोसेसेस हैं वो आपके इंटरनेट वर्ल्ड पे होते हैं, इसीलिए इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है. ओके, टुडे क्लाउड कंप्यूटिंग इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम consumers, including everyone from individuals at home to the government. One approach to understanding cloud computing is to think about how we use our email account. We launch a web browser and sign into our email account to view our email when we need to. Our email accounts aren't kept in the computer's memory, but we can access them from any place with an internet connection. Our emails are kept in a server computer that is physically situated far away. Our email account can be accessed via email server through internet connectivity. The functioning of an email service is comparable to cloud computing. If we use a cloud service, we can access a variety of user available services like storage, processing and security services in addition to accessing our email. देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग आज के टाइम में बहुत जो कंज्यूमर से लॉट ऑफ इंटरेस्ट उनको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें कि एवरीवन मतलब फ्रॉम इंडिविजुअल एट होम टू द गवर्नमेंट. ओके, अब क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने का एक तो ये अप्रोच है कि ये सोचने का कि कैसे हम अपना ईमेल अकाउंट यूज़ करें. देखिए, हम एक वेब ब्राउज़र लॉन्च करते हैं, फिर ईमेल अकाउंट में साइन इन करते हैं हमारा ईमेल देखने के लिए जब कभी भी हमें ज़रूरत होती है. हमारा ईमेल अकाउंट जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में नहीं होता है, बट हम उसे किसी भी प्लेस से एक्सेस कर सकते हैं, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. आपके जो ईमेल्स होते हैं वो सर्वर पे रखे जाते हैं इन अ सर्वर कंप्यूटर जो कि फिजिकली फार अवे होते हैं. ओके, तो हम अपनी ईमेल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं वाया ईमेल सर्वर, बट देयर शुड बी इंटरनेट कनेक्टिविटी. ओके, तो जो फंक्शनिंग होती है ईमेल सर्विस की वो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं टू क्लाउड कंप्यूटिंग. अगर हम क्लाउड सर्विस का यूज़ करते हैं तो हम वैरायटी ऑफ यूज़र अवेलेबल सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज. ओके, do you know by 2023 researchers predict that more than 40 zettabyte of data will be stored on the cloud. रिसर्चर्स का प्रिडिक्ट करना है कि 2023 तक जो 40 zettabytes है डेटा का वो आपके क्लाउड में स्टोर होगा. Now, advantages of using cloud services. You can become an expert in machine learning if you comprehend other concepts that are related to it. The various fields that have contributed to machine learning are briefly listed below. तो देखिए advantages क्या है cloud services use करने के. सबसे पहले freedom of access. The drawback of the conventional computer system is that we must physically be where our data storage device is in order to access it. Through the internet, we may access data using cloud services from anywhere in the world. Okay. अब देखिए क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करते हुए, हम वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो. ओके, अब कन्वेंशनल कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि हमें फिजिकली वहाँ पे होना है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिससे कि हम उसे एक्सेस कर सकें. ओके, हेल्पफुल फॉर बिजनेसेस. स्मॉल बिजनेसेस कैन बेनिफिट फ्रॉम क्लाउड सर्विसेज. However, they provide a significant contribution to small businesses by providing them storage and processing capabilities, which were previously only accessible to large organizations because of the high cost of infrastructure constructions. अब देखिए क्लाउड सर्विसेज जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है. पहले के टाइम पे क्या होता था कि सिर्फ जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थी वही एक्सेस कर पाते थे क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही इतना ज़्यादा था. ओके, नेक्स्ट इज फ्लैक्सिबल सर्विसेज.
Sometimes a business or a person may need more or less space depending on their storage space needs. We can also quickly sign up for or discontinue using a cloud service. कई बार क्या होता है कि किसी बिजनेस को या पर्सन को कम स्पेस की ज़रूरत होती है, ओके कम या ज़्यादा की, वो डिपेंड करता है कि उनकी स्टोरेज स्पेस नीड्स क्या है. तो आप क्विकली साइन अप कर सकते हैं या डिसकंटिन्यू कर सकते हैं क्लाउड सर्विस से. ओके, रिडक्शन in cost. If someone wants to launch a new business, they will need to invest a lot of money in new computers, internet access devices, additional storage devices, security measures, and software licenses. This would undoubtedly take a large amount of money. By using cloud services that can meet all of our needs for storage, security, and app accessibility, we can reduce this expense. The setup cost will be significantly reduced by using cloud services. ओके, अगर कोई अपना छोटा सा बिजनेस लॉन्च करना चाहता है तो उनको बहुत सारा मनी जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है न्यू कंप्यूटर में, तो इंटरनेट एक्सेस डिवाइसेस में, एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस में, बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी मेजर्स हो गए, सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो गए. ओके, तो इससे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. ओके, बट क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करके ये सारी जो इनकी नीड्स हैं, जैसे स्टोरेज की या सिक्योरिटी की या ऐप एक्सेसिबिलिटी की, ये रिड्यूस हो जाता है, इनका एक्सपेंस रिड्यूस हो जाता है. ओके, मतलब ये इतना क्लाउड सर्विसेज का जब यूज़ करेंगे तो ये सारा सेटअप कॉस्ट आपका काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा. ओके, नाउ क्लाउड स्टोरेज. द मेजॉरिटी ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफर स्टोरेज ऑप्शंस. यूजर्स लव these storage services extremely much. Google Drive, Dropbox, OneDrive, and other well-known services are very popular. As a result, it is crucial for us to comprehend the security procedures that a cloud service provider has in place and to take our own steps to protect our data. ओके, जो मेजॉरिटी है क्लाउड प्रोवाइडर्स वो क्या करते हैं, स्टोरेज ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं. तो यूज़र्स को ये स्टोरेज सर्विसेज बहुत अच्छी लगती हैं. जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, वन ड्राइव या दूसरे जो वेल नोन आपके सर्विसेज, ये काफ़ी पॉपुलर है. ओके, तो अब एज अ रिजल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सिक्योरिटी पर्पस है, ओके, जो कि आपका एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ओके, उसको कॉम्प्रिहेंड करें इन प्लेस एंड फिर अपने ओन स्टेप्स ले हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज. Different types of cloud services are available depending on the needs of the users. Number one, public cloud. Anyone with an internet connection and access to the cloud space can use a public cloud. All of its users have access to the public cloud. It is accessible to everyone, but the data and applications used by one subscriber are hidden from all other subscribers. अच्छा, कोई भी जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो क्लाउड स्पेस को एक्सेस कर सकता है. ओके, एंड जितने भी इसके यूजर्स होते हैं वो पब्लिक क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं. हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, बट जो डेटा एंड एप्लीकेशन जो एक सब्सक्राइबर यूज कर रहा है वो बाकी के सब्सक्राइबर से हिडन रहता है. ओके, नेक्स्ट, प्राइवेट क्लाउड. A private cloud is created specifically for a given organization and only that organization is permitted to use it or access it. Access to data and applications are strictly controlled in private clouds. An example of this may be a school's canteen, which is solely open to its own faculty, students and staff. प्राइवेट क्लाउड जो क्रिएट किया जाता है वो स्पेसिफिकली एक गिवन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट किया जाता है और एंड ओनली सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये परमिशन होता है कि वो उसको यूज़ कर सके, एक्सेस कर सके. ओके, ये मतलब स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होते हैं आपके प्राइवेट क्लाउड्स में. तो एग्जांपल जैसे स्कूल का कैंटीन है जो कि अपनी फैकल्टी के लिए ओपन हो रहती है, स्टूडेंट्स या स्टाफ्स के लिए, मतलब कोई बाहर वाले के लिए कैंटीन की जो सुविधा वो नहीं होती, राइट. Community cloud. A community cloud is shared by two or more businesses with similar cloud needs. This kind of solution aids businesses in cutting cost associated with cloud services. Community cloud की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कम्युनिटी, इसको दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस आप शेयर कर सकते हैं सिमिलर क्लाउड नीड से. ओके, तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग हो जाती है. ओके, नेक्स्ट, हाइब्रिड क्लाउड. In core, a hybrid cloud is a merging of at least two clouds, where the clouds are a mix of community, private and public clouds. हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि आपके कम से कम दो क्लाउड्स का मर्जिंग होता है जहाँ पे क्लाउड्स आपके मिक्स होते हैं, कम्युनिटी, प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स के. ओके, पब्लिक provisioned for open use for the public by a particular organization who also hosts the service.
private, used for a single organization, can be internally or externally hosted. Hybrid, the composition of two or more clouds, private, community, or public, that remain unique entities, and community shared by several organizations, typically extremely hosted but also can be internally hosted by an organization. अच्छा देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम पब्लिक की बात करें, जैसे मैंने बात किया, ये आपके पब्लिक के लिए ओपन होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि सर्विस को होस्ट भी करता है. प्राइवेट में एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है इसे, जो इंटरनली या एक्सटर्नली होस्टेड होता है, राइट. एंड हाइब्रिड में आप क्या होता है, कॉम्पोजिशन में दो या से ज़्यादा क्लाउड्स का, ओके, और जो कि दैट रिमेन यूनिक एंटिटीज़. एंड कम्युनिटी में आता है कि सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस को शेयर करते हैं, टिपिकली आपका एक्सटर्नली होस्टेड होता है, ओके, बट इंटरनली होस्टेड भी हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ओके. नाउ टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन क्लाउड्स. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. A SaaS cloud service gives subscribers access to different applications or apps. SaaS frees us from downloading and storing an app in our phone. This means you do not need to install the required app on your device. SaaS makes it easier to have the same software on all the devices at once by accessing it on the cloud. अब ये जो SaaS यानी SaaS cloud service है, ये सब्सक्राइबर को एक्सेस देता है टू डिफरेंट एप्लीकेशंस और एप्स, ओके. तो ये हमें फ्री करता है डाउनलोडिंग से एंड ऐप को स्टोर करने से हमारे फ़ोन में. इसका मतलब कि आपको जो रिक्वायर्ड ऐप है आपके डिवाइस में इंस्टॉल करने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, ओके. एंड ये सास जो है हमारे लिए एक काफ़ी इजी कर देता है कि सेम सॉफ्टवेयर हम हमारे ऑल डिवाइसेस पे रहे एट वंस बाय एक्सेसिंग इट ऑन द क्लाउड, राइट. नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. अ पास सिस्टम goes a level above the software as a service as set up. A PaaS provider gives subscriber access to the components required to develop and operate application over the internet. अब PaaS जो आपका सिस्टम है वो थोड़ा सा आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेटअप के एक लेवल अबव चला जाता है. इसमें क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर्स को एक्सेस मिलता है टू द कंपोनेंट जो उनको रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एप्लीकेशन को ऑपरेट एंड डेवलप करने के लिए ओवर द इंटरनेट, ओके. Next is infrastructure as a service. In an IaaS agreement, the subscriber completely outsources the storage and resources such as hardware and software that they need. All this simply means that we can choose a specific cloud service based on our requirement. अब इस agreement में क्या है आपका IaaS agreement में जो सब्सक्राइबर है वो completely outsource करता है स्टोरेज एंड रिसोर्सेज को, जैसे कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जिनकी भी उसे रिक्वायरमेंट होती है. तो इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक क्लाउड सर्विस को हम चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ओके. नाउ क्लाउड सिक्योरिटी. We all recognize the need of protecting our data from unauthorized users. By incorporating system security in the form of a user ID, password, or PIN, we may protect the data on our computer. However, if we are using the internet to store our data on a cloud service, it may also free up more space for other users to access our data. देखिए, अब हम सबको अपने डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर से बचाना है, इसकी हम सबको पता है इसकी कितनी ज़रूरत है. तो अगर by incorporating system security in the form of a user ID, password या PIN, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को जो कंप्यूटर पर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके. लेकिन अगर हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड सर्विस पे, तो हम कुछ जो स्पेस उसको फ्री अप कर सकते हैं दूसरे यूजर्स के लिए कि वो डेटा को एक्सेस कर सकें, राइट. However, we will have to willingly lose direct control of our data in order to benefit from the cloud. On the contrary, keep in mind that most cloud service providers have a great deal of knowledge on how to keep our data safe. In order to secure their computers and networks, service providers have access to more tools and knowledge than the average user. हालांकि क्या होगा कि हमें willingly जो direct control है ना हमारा डेटा का उसको लूज करना पड़ेगा जिससे कि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें क्लाउड से. तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो मोस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका काफ़ी नॉलेज होता है, ग्रेट डील ऑफ नॉलेज होता है कि किस तरह से डेटा को सेफ रखा जाता है, ओके. तो अपने कंप्यूटर्स को सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए और नेटवर्क को सेफ रखने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये इनका एक्सेस होता है और ज़्यादा टूल्स और ज़्यादा नॉलेज पे देन द एवरेज यूज़र. The following considerations should be made by user choosing which cloud services to use. तो देखिए कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना है जब कभी भी आप क्लाउड सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, ओके.
What kind of encryption does the provider use? What methods of protection do they have in place for the actual hardware that our data will be stored on? Do they have duplicates of our data on hand? मतलब किस तरह का वो इंस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगा या नहीं रहेगा, ओके मैथड जो है प्रोटेक्शन के वो क्या रहेंगे, ओके एंड क्या उनके पास हमारे डेटा का डुप्लीकेट होगा? डू दे हैव फायरवॉल्स सेटअप? What safeguards are in place to prevent a user's information from being shared with other users if they have a community cloud? Okay, क्या उनका firewall setup है? Okay, और क्या safeguards हैं कि यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो प्रिवेंट कर सकें कि वो मतलब दूसरे यूज़र के साथ शेयर ना हो अगर उनका कम्युनिटी क्लाउड है? तो आपको हमेशा ये सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखने हैं, ओके हमेशा ये कंसिडरेशंस आपने रखनी है ना. डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? We have little to no understanding of where our data is stored and we have limited control over who has access to our information. Number 2, our data is frequently accessed by hackers without a permission. देखिए इसके दो सबसे बड़े डिसएडवांटेज है. सबसे पहले तो हमें बहुत थोड़ी सी या ना के बराबर जानकारी है कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है. हमारे पास लिमिटेड कंट्रोल होता है कि कौन हमारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. दूसरी चीज़ हमारा जो डेटा है उसको जो हैकर्स हैं उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं बिना हमारी परमिशन के. Okay, remember it, 1.2 billion files are saved on Dropbox every day. हर दिन Dropbox में 1.2 billion files सेव होती हैं. Okay, now some popular cloud services. अब कुछ popular cloud services के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले Dropbox. One of the best cloud services for sharing files is Dropbox. It offers its customer SaaS-based services. Many people take advantage of its limited free storage options, but it also provides paid services to both individuals and organizations under various plans. ये बेस्ट क्लाउड सर्विसेज है फाइल को शेयर करने का, which is Dropbox. अब इसमें ये जो ऑफर है अपने कस्टमर को SaaS बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बहुत सारे लोगों को एडवांटेज जो होता है क्योंकि होता है इसका लिमिटेड फ्री स्टोरेज ऑप्शन की वजह से. बट ये पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को और अंडर वेरियस प्लान्स. ओके, नेक्स्ट इज गूगल जी स्वीट. द मोस्ट वाइडली यूज्ड email application is the Google Play Store is Gmail, a free online email service. Google Calendar, Google Drive, Google Plus, Hangouts, Docs, Sheets, Forms, Slides, Sites, Keep, and Jamboard are all part of Gmail's email service. It also provides cloud-based storage services to the users. अच्छा देखिए, सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होने वाला ईमेल एप्लीकेशन है, ओके, ये गूगल प्ले स्टोर में होता है आपका, विच इज़ Gmail, एक फ्री ऑनलाइन ईमेल सर्विस. इसके अलावा देखिए आपका चाहे गूगल कैलेंडर है, गूगल ड्राइव, गूगल प्लस, आपका हैंगआउट्स, फॉर्म, साइट्स, ये सारे Gmail's ईमेल सर्विस के पार्ट हैं. ओके, ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है यूजर्स को. नेक्स्ट इज Adobe Creative Cloud. Creative professions like artists, filmmakers, designers, and other creative professionals can access cloud-based services from Adobe Creative Cloud. InDesign, XD, Premiere Pro, Dreamweaver, etc. are a few of the most well-known apps. आपके जैसे जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जैसे आर्टिस्ट हो गए, फिल्म मेकर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, या दूसरे कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं Adobe Creative Cloud से. ओके, डिज़ाइन, InDesign या XD, Premiere Pro, Dreamweaver, ये सारे आपके बहुत ही फेमस एप्स हैं. ओके, let's recall. Cloud computing is a service that requires a subscription and includes a number of services. If we use a cloud service, we can access a variety of user-available services like storage, processing, and security services in addition to accessing our email. One of the best cloud services for sharing files is Dropbox. Creative professions like artists, filmmakers, designers, and other creative professionals can access cloud-based services from Adobe Creative Cloud. A private cloud is created specifically for a given organization and only that organization is permitted to use or access it. Students, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा, interesting लगा होगा, and chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.